सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ रूल 2। हम अभी तक पढ़ चुके हैं रूल 1 एंड वी हैव आइडेंटिफाइड हु इज द इंटेलिजेंट पर्सन। ये समस्या हमारी खत्म हो चुकी है। नाउ सेकंड इज व्हाट you will have to move an application naturally। you if you want to seek the permission from the court you will have to move an application। अगर आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, हाँ है ना, करनी पड़ेगी ना। तो therefore what should be the contents of the application, उस एप्लीकेशन में क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, you what should be written in that, what should be the format of that application, and thereafter how it shall be presented in the court, how it shall be presented in the court। So this is first we can say contents of the application means what should be the form of the application, and second is what how it should be presented means presentation of the application, form of the application and presentation of the application। These two are the crucial matters which should be discussed by us now, rule 2 and rule 3। So now we are going to study this rule 2, and now for that purpose please go to the slide। Let's have the slides now, please see this now। So this is the slide and this is now rule 2। this is what rule 2, contents of the application, and now you can also say this is what we can say, this is form of application, because it is very important when you will read this rule 5। जब rule 5 मिलेंगे then you will see the reference of this। if this application is not in the format as it is required in rule 2 application may be rejected। ये हम पढ़ेंगे रूल 5 में, ठीक है। राइट नाउ वी शुड नो व्हाट शुड बी द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, एंड अगेन आई विल से दिस कैन बी द क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ आई रीड द डायरेक्ट लैंग्वेज फॉर यू, प्लीज सी दिस। एवरी एप्लीकेशन, which application? Application for permission, for what permission? To sue as an indigent person, shall contain, this is shall contain, it is not may contain, it is what shall contain the particulars required in the plaint in the suit। Number 1, this is 1, and number 2, a schedule of what? Schedule of movable property or immovable property belonging to the applicant with the estimated value thereof shall be annexed therewith। This is the direct language। Now please see this last part is, and it shall be signed and verified in the manner prescribed for the signing and verification of the pleadings। pleadings आप पढ़ चुके हैं, order 6 say। now please see this side, what we need, this side, please see this side now। see, so you have seen this is the direct language of rule 2। what is the importance? see, आपकी जो application है that should be containing the prescribed contents। अगर वो prescribed content नहीं दिए गए हैं in that case your application may be rejected। so be careful what should be the contents of the application। number 1, very important, what is this? particulars required in the plaint in the suit, please। this is what given order 7। ये order 7 में दिया गया है। कौन क्या दिया गया है? order 7 में हम पढ़ते हैं plaints, है कि नहीं है? we have read it। order 7 is related to plaint। plaint में क्या क्या particulars होने चाहिए plaintiff का पता होगा, particulars as to the plaintiff, particulars as to the defendant, their details, descriptions, cause of action, everything you know it very well। so all those particulars should be applied, should be the part of the application itself। why it is it is very special to know। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि when this application will be accepted later on, this application itself will be treated as plaint। जब ये एप्लीकेशन मान ली जाएगी, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी, तो इसी एप्लीकेशन को प्लेंट ट्रीट कर दिया जाएगा। तो therefore it is expected कि it should have all the particulars of the plaint। नहीं आई बात समझ में? अभी समझिए, देखिए प्लीज सी दी, इसको देखिए आप, है क्या? प्लीज सी द स्लाइड, देखिए ये है क्या? दिस इज एवरी एप्लीकेशन फॉर व्हाट? फॉर द परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। इसी को पढ़िए बस, एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। इतनी बात समझिए आप लोग बस, देखिए इसमें क्या है। तो ये एप्लीकेशन किस लिए है?
एडमिशन टू सीक द परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, ये एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में क्या रिक्वेस्ट होनी चाहिए, क्या रिक्वेस्ट करेगी एप्लीकेशन, ये कि यू शुड बी परमिटेड टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, इन जनरल ये क्या होना चाहिए था, एक एप्लीकेशन होती सिंप्लीफाइड कि जनाब इट इज प्रेड दैट आई एम एन इंडिजेंट पर्सन, आई शुड बी अलाउड टू सू एज द इंडिजेंट पर्सन, देयर वाज नो नीड ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस कहने को ये एप्लीकेशन टू सू एन इंडिजेंट पर्सन है, लेकिन इट इज ऑल्सो कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट, और यही इसकी स्पेशलिटी है। समझ में बात है कि यही इसकी स्पेशलिटी है कि इट इज नॉट ओनली प्रेइंग टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन बट ऑल्सो इट इज कंटेनिंग ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। व्हाई इट इज सो, बिकॉज सब्सिक्वेंटली इफ एक्सेप्टेड दिस application will be treated as plaint, you will not need to file separate plaint। आप इसको ऐसा समझ लीजिए मैडम आरुषि बंसल, समझिए इस बात को, क्या है कि आप चाहती हैं एक यू वांट टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, आप एक निर्धन व्यक्ति के रूप में केस लाना चाहती हैं, तो नेचुरली यू विल हैव टू सीक परमिशन। आपके लिए फिर आप कहेंगे परमिशन कैसे मिलेगी, वकील साहब ने कहा कि आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, आप ले आई है ना टू दी सिविल, वही ऑनरेबल सीजर पूरा करके उसका फॉर्मेटिंग करके, उसकी ओनली प्रेयर क्या है कि आई एम ए पुअर पर्सन, आई शुड बी अलाउड, काइंडली अलाउ मी टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो ये क्या होगी, एकदम ओनली एंड स्पेसिफिकली परमिशन होगी, पर एप्लीकेशन टू सू परमिशन होगी, you are not mentioning anything else। at the most what you can do, you can provide what schedule of your property, कि this following is my property, this is the estimated value of the property, and on the basis of the estimation of the value of my property I should be allowed to sue as indigent person। now आप क्या सोचेंगी कि एक बार मैं इंडिजेंट के रूप में मुझे अलाउड हो जाए, then I will file the plaint। ये एक आपका माइंडसेट हो सकता है, लेकिन ऐसा लॉ नहीं कहता। व्हाट द लॉ सेज, नो, इन द एप्लीकेशन टू सू इटसेल्फ यू शुड मेंशन ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट। जिस एप्लीकेशन में आप परमिशन सीक कर रहे हैं उसी में सभी प्लेंट के पर्टिकुलर्स आपको लिखने होंगे, अदरवाइज इट कैन बी रिजेक्टेड। आई होप इट इज सफिशिएंटली एक्सप्लेन नाउ। अब आप समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, ऑर्डर 7 में जैसे कि प्लेन्स के पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो सारे पर्टिकुलर्स आपकी एप्लीकेशन में होने चाहिए। नंबर सेकेंडली, ए शेड्यूल ऑफ मूवेबल एंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी विद एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ। एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ मीन्स उसकी कितनी वैल्यू है उसका आकलन करते हुए अनुमानित रकम, अनुमानित उसका मूल्य कितना है और किसकी होगी, बिलोंगिंग टू द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट की जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसकी अनुमानित जो वैल्यू है उसको मेंशन करते हुए वो भी लिखोगे आप। क्यों है इसमें, क्योंकि उसी से ये पता चलेगा कि आपको जो कोर्ट इंडिजेंट पर्सन माने या इंडियन पर्सन नहीं माने। ठीक है, और क्या चाहिए था नेक्स्ट, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन एज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 6 रूल 14 एंड 15। तो ये प्लीडिंग्स के जो ऑर्डर 6 है, यू नोट वेरी वेल। तो signature are required, verifications are required, so all these forms are required, otherwise you know the consequence of the violation of rule 2 will be what, your application will be rejected as per rule 5। जब हम rule 5 पढ़ेंगे, देखिए ये rule 5 पढ़ेंगे रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें जो पहली एक ग्राउंड है where it is not framed and presented in the manner prescribed by rule 2 and presented as well prescribed by rule 3। तो it is not as if don't take it lightly, you will have to draft your application in such a way that it is containing all the particulars। कौन से particulars रिवाइज कर लीजिए, particulars of the plaint, number second movable schedule of movable or immobile property with estimated value, and number third is what, signature and verification as per rule 6 order 6 rule 14 and 15 कर लेंगे आप लोग। now move to the rule 3rd, this is rule 3rd for you। so now come to the rule 3rd, and this is now rule 3rd for you, this is rule 3rd, and come to the slide।
So please come to the rule third. What it says now. This is the direct reading of rule third. Rule third. Presentation of the application. What is this? See, this rule is also very important as the rule 2. जैसे rule 2 important था, ऐसे rule 3 important है. Why? Because अगर आपने present नहीं की application, जैसे कि rule 3 की requirement है, in that case your application may be rejected because it is one of the ground of rejection as mentioned in rule 5, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. rule 5 में ये एक अपने आप में ground है कि आप अगर आपने प्रेजेंट नहीं की एप्लीकेशन जैसे कि रूल 3 में दिया गया है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है. तो ध्यान रखना, रूल 2 का वायलेशन हो या रूल 3 का वायलेशन हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अब इसको पढ़िए ढंग से. दिस इज द डायरेक्ट रीडिंग. Notwithstanding anything contained in these rules, the application shall be, this is shall be, presented to the court by the applicant in person को आप राउंड कर लीजिए, and unless he is exempted from appearing in the court, इसको भी आप ढंग से पढ़ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए. Now please see this side. Please see this side now. See what is the requirement of rule 3. Rule 3 कह रहे हैं कि जो applicant है, the person who wants to sue as an indigent person, जो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में सू करना चाहता है, वह अपनी एप्लीकेशन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत होकर के प्रस्तुत करेगा. ये है बस सिंपल सी बात है. इट शैल बी, इट इज द मैंडेटरी प्रोविजन. फिर पढ़ लीजिए आप दूसरी स्लाइड में, देखिए जरा क्या है. दिस इज द एप्लीकेशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट बाय whom? By the applicant in person. This is the application shall be presented to the court by the applicant in person. This is what I was saying to you, in person. Don't forget this. Unless he is exempted from appearing in court. So try to understand this side please. So it is the requirement. This is the mandatory requirement that applicant should appear in person. So yeah. But there is an exception also. Unless he is exempted from appearing in the court. अगर वो कोर्ट में अपियर होने के लिए कोर्ट ने ही एग्जाम्प्ट कर रखा हो, in that case he need not to appear. and in that case क्या होगा? This is what, in that case, in which case the application may be presented by an authorized agent. In that case application may be presented by the authorized agent. समझ में आ गई बात? तो फर्स्ट चॉइस क्या है? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? यू शुड अपीयर इन पर्सन. अदरवाइज इफ यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कोर्ट, you may present your application through the authorized agent. Now what is the requirement of the authorized agent? That is very important, and again you will have to read the direct language for that. So please go to the slide now, and now this is the slide for that. Please read this slide with me now. In which case the application may be presented by an authorized agent. ये हम समझ चुके हैं. In which case means in the case when he is exempted from appearing in the court. इस केस में जब एप्लीकेंट को पर्सनल एग्जेम्पशन मिल जाती है, उस केस में in that case the application may be presented by an authorized agent. ये बात समझ में आ चुकी. लेकिन authorized agent कैसा होना चाहिए? This is important. Who can answer all the material questions relating to the application, number 1, and who may be examined, number 2, in the same manner as the party represented by him might have been examined had such party attended in person. अब इसको समझिए. Please see this side. This side, please see this. First requirement क्या है? Who can answer all the material questions relating to the application. ये authorized agent कैसा होना चाहिए? Who can answer all the material questions relating to the application. Material question को हिंदी में बोलते हैं तात्विक प्रश्न. जितने भी important questions हैं relating to the issue, relating to the application, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने में वह व्यक्ति सक्षम होना चाहिए. कौन? हु इज योर ऑथराइज्ड एजेंट. आपकी जगह पर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप अपनी एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में भेज रहे हैं, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट यह है कि दैट पर्सन शैल बी एबल टू आंसर ऑल द मेटेरियल क्वेश्चंस. वो सभी मेटेरियल क्वेश्चंस को जवाब दे पाए. वो आप समझ रहे हैं इस बात को. एंड सेकेंडली, ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई. इसको समझिए, इसी को समझाता हूँ पहले आपको, इसी को और समझ लीजिए इस तरीके से. मीनिंग देयर बाई
कि नेचुरली ही इज रिप्लेसिंग यू इफ यू आर द एप्लीकेंट, अगर आप एप्लीकेंट हैं और आपकी जगह आपने किसी को भेजा है, अब मान लीजिए यू आर द पर्सन हु इज सीकिंग परमिशन टू सू एज एन इंडियन पर्सन एंड यू आर सेंडिंग मी एज एन ऑथराइज्ड एजेंट। अगर मैं आपका अधिकृत एजेंट बन के कोर्ट में जाता हूं, आपकी एप्लीकेशन लेकर के जा रहा हूं और कोर्ट मुझसे कुछ क्वेश्चंस करती है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछती है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी एप्लीकेशन से संबंधित हैं, बट इफ आई से आई डोंट नो अबाउट दैट, then the mere purpose of sending me in the court will frustrate. It will be the wastage of time of the court as well. In that case, what is required, जिसको भी आप भेजेंगे ऑथराइज एजेंट बना करके, he should be able person, उसको सारे मेटल क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, उसके आंसर्स का पता होना चाहिए, वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके उन सही पॉइंट्स पर। तो दिस इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, अगर कोर्ट इफ द कोर्ट वांट्स टू एग्जामिन हिम, कोर्ट उसकी परीक्षा करना चाहती है। एग्जामिनेशन का है मतलब ये नहीं कि उससे कोई क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे जुडिशरी के, नो इट इज नॉट सो। दैट विल एग्जामिनेशन मींस उसको विटनेस बॉक्स में बुला करके उससे कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन पूछेगी कोर्ट, फॉर्मली क्वेश्चन पूछे उससे, एंड वो उसको उन क्वेश्चंस को भी, उस एग्जामिनेशन को भी वो कर पाए, एग्जामिनेशन दे पाए अपने तरीके से। और एग्जामिनेशन कैसे होगा, जैसे कि अगर आप स्वयं कोर्ट में गए होते और उसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा जैसे कि अब इसका हो सकता है, जैसे आपका एग्जामिनेशन होता वैसे ही इसका, इस ऑथराइज एजेंट का भी एग्जामिनेशन हो सकता है। तो अब ये दोनों ही बातें हैं। तो पहली बात क्या है, आप प्लीज फिर एक बार स्लाइड देखिए, प्लीज सी द स्लाइड अगेन। दिस इज व्हाट दिस इज ऑथराइज एजेंट हु कैन दिस इज, सी देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हु कैन आंसर, जो आंसर कर पाए क्या, ऑल मेटेरियल क्वेश्चंस। दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मेटेरियल क्वेश्चंस। तो जितने भी मेटेरियल क्वेश्चंस हैं उन सभी का वो जवाब दे पाए। लेकिन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन, उस आवेदन पत्र से संबंधित जितने भी तात्विक प्रश्न हैं उन सभी का वो आंसर कर पाए उसको। तो एक ही रिक्वायरमेंट है। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट को समझने के लिए आप यहां समझ लीजिए, एंड हु मे बी एग्जामिन्ड, सही है, हु मे बी एग्जामिन्ड कैसे, इन द सेम मैनर, कैसे सेम मैनर, एज द पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय हिम, मींस मैनर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ऑथराइज्ड एजेंट एंड द पार्टी ही इज रिप्रेजेंटिंग विल बी सेम, might have been examined had such party attended in person। ये मैंने आपको रीड करके दिखाया, अब मैं इसको दोबारा पढ़ के समझाता हूँ आपको, देखिए क्या होता है। The second requirement is of the examination. Examination means कि you know it very well, examination chief, exam, cross examination, this is all examination, परीक्षा है उसकी। तो because क्यों, क्योंकि हमें ये जानना है कि whether the person is an indigent person or not। तो सपोज कीजिए मैडम साक्षी अगर इंडिजेंट पर्सन के रूप में ट्राई कर रही होती, शी इज सीकिंग परमिशन फॉर दैट एंड नाउ शी इज सेंडिंग मी एज एन ऑथराइज्ड एजेंट। तो अगर दोनों ही सिचुएशन में, नाउ सपोज कोर्ट वांट्स टू एग्जामिन मी, अब मैं कोर्ट से कहूं नो मैं, मुझे नहीं पता सर इतने डिटेल्स में, नो कोर्ट कही नो, द लाइक वी कुड एग्जामिन द साक्षी द वे वी कैन एग्जामिन यू आल्सो। इफ यू आर एबल टू गेट एग्जामिन इन द सेम मैनर देन ओनली वी प्रोसीड, अदरवाइज वी विल नॉट, and otherwise it shall not be considered at the proper presentation of the application। so this is all about the rule 3 half part। now बात समझ में आ गई। तो रूल मैं आपको समझ करता हूं, उसमें क्या है, this was the rule first, that it is the mandatory provision that the such application shall be presented by the applicant in person, otherwise he should seek the exemption from the court, personal exemption के appearance के लिए, and if he is exempted in that case he can present his application through his authorized agent, but how, subject to two conditions, authorized agent should be able to answer all the material questions, and secondly he should be capable enough to be examined as in the manner as the party to whom he is represented। this is the all about so far हम लोग रूल थर्ड में पढ़ा। अब आगे देखते हैं क्या, देखिए नाउ देयर में बी सिचुएशन व्हेन देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन, तब एक प्लेंटिव से ज्यादा प्लेंटिव हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 प्लेंटिव्स हो। तो वन प्लेंटिव का रूल हमने पढ़ लिया कि ही विल हैव टू प्रेजेंट हिमसेल्फ,
he will have to appear in person. But what about when there are minimum 2 plaintiffs? In that case क्या ये जरूरी है कि दोनों के दोनों plaintiff appear हो? Is it necessary? Both plaintiffs should appear in the present? No, answer is no. This is given in proviso. So please read the proviso. This is proviso. Provided that where there are more plaintiffs than one, more plaintiffs than one का मतलब it may be 2, it may be 3, it may be 4, anything, it may be more than 1. It shall be sufficient, यह पर्याप्त होगा क्या? If the application is presented by one of the plaintiffs and it is the rule, it is the question of your prelims as well. Please see this side now. So in that case when there are 2 plaintiffs minimum, or you can say within minimum more than one, in that case even if single plaintiff appears and present its application, it will be the sufficient compliance of the rule 3rd. तो क्या कहा मैंने आपसे कि अगर प्लेंटिफ एक से अधिक हैं तो ऐसे केस में ये आवश्यक नहीं है कि सभी प्लेंटिफ्स इन पर्सन अपीयर हों. इट इज सफिशिएंट if any one of them is presenting in the application in present. उनमें से एक भी प्लेंटिफ अगर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रेजेंट होकर के उसको प्रस्तुत करता है तो वो इसके अपने आप में पर्याप्त कंप्लायंस होगी. कौन सी की? इसकी रूल 3rd की कंप्लायंस होगी. समझे आप लोग? अब आगे देखिए क्या है. सो इट इज ऑल अबाउट रूल 3 नाउ, एंड नाउ वी विल स्टडी रूल 4. प्लीज कम टू द रूल 4 नाउ. So please come to the rule 4, and what it is? Rule 4 is related to the examination of the applicant. What if you have presented your application, then applicant or his agent may be examined by the court. तो कौन से रूल में होगा? रूल 4 में होगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर. पहले आपने आइडेंटिफाई करा हु इज इंडिजेंट, देन आपने एक एप्लीकेशन बनाई एज पर रूल 2, देन इट वाज प्रेजेंटेड एज पर रूल 3, एंड नाउ देन नेक्स्ट स्टेज कम्स your examination. So please go to the slide, read the language. This is what examination of the applicant. What where the application is in proper form, यानी कि rule 2, correct or not? Rule 2 and duly presented, यानी कि rule 3 complied. Then court may, if it thinks fit, examine the applicant or his agent when the applicant is allowed to appear by agent. तो दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज. बहुत सिंपल सी फॉर्म है, बात है, समझ लीजिए एक बार बस. तो रूल 4 क्या कह रहा है कि व्हेन प्रॉपर फॉर्म में प्रॉपरली प्रेजेंटेड हो गई आपकी एप्लीकेशन, आपने अगर एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर दिया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फॉर्म मीन्स प्रॉपर कंटेंट्स में आ गया एज पर रूल 2, एंड प्रॉपरली प्रेजेंटेड इट मीन्स व्हाट, ईदर इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट. Then what will be the consequence? Then thereafter what will be the procedure thereafter? उसमें क्या होगा? कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, कोर्ट में, प्लीज सी द स्लाइड, क्या है? कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को सही ऐसा लगता है, क्या कर सकती है? कोर्ट में कोर्ट एग्जामिन कर सकती है किसको? द एप्लीकेंट को कर सकती है, या और हिज एजेंट, या उसके एजेंट को करेगी. कब? व्हेन एप्लीकेंट इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट. जब एप्लीकेंट थ्रू एजेंट अपीयर होगा तब एजेंट का एग्जामिनेशन, जब वो खुद अपीयर होगा तब उसका खुद का एग्जामिनेशन. तो दिस कैन बी द एग्जामिनेशन ऑफ दिस. समझे आप लोग? तो दिस इज रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट व्हेन आफ्टर द कंप्लायंस ऑफ रूल 2 एंड रूल 3. रूल 2 और 3 के बाद में क्या होगा? कंप्लायंस होगी. 4 में कंप्लायंस होगी जाकर, और उसमें क्या हो सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है. दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज व्हाट इट इज. कोर्ट में एंड कोर्ट में नोट एज वेल इफ इट थिंक्स फिट. समझे आपने? कोर्ट चाहे तो, लैंग्वेज देखिए आप लोगों ने, कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट मींस व्हाट, कोर्ट को अगर सही लगेगा तो एग्जामिन करेगी, नहीं करेगी, लेकिन एग्जामिनेशन होगा किस पॉइंट के लिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन. पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा? पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन है, आगे पढ़ के क्या है? दिस इज व्हाट, प्लीज रीड द लैंग्वेज. दिस इज regarding the merits of the claim. Number 1, merits of the claim, and number 2, the property of the applicant. इन दो बातों के लिए उसका एग्जामिनेशन है. एग्जामिन फॉर 1, एग्जामिन फॉर 2 एज वेल. रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ द क्लेम एंड, यानी कि नंबर 2, द प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट. प्लीज सी दिस साइड नाउ. तो जो इसका एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पर एप्लीकेंट का या उसके एजेंट का, व्हाट इज द पर्पस?
पर्पज इज टू फाइंड आउट व्हाट आर द, उसका जो क्लेम है रिगार्डिंग की, व्हाट इज हिज क्लेम दैट आई एम इंडिजेंट एंड व्हाट इज हिज प्रॉपर्टी। इन दो क्लेम के बारे में उसको एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्लेम था उसका, व्हाट इज क्लेम कि आई एम इंडिजेंट, सेकेंडली व्हाट इज हिज प्रॉपर्टी। इन 2 पॉइंट्स पर उसका एग्जामिनेशन हो सकता है। कहां पर होगा, दिस इज अंडर रूल 4। समझे आपने, समझे। नाउ रीड द नेक्स्ट लैंग्वेज, प्लीज सी दिस, प्लीज सी दिस, दिस इज स्लाइड वेयर द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड बाय एन एजेंट। एजेंट प्रस्तुत कर रहा है, तब क्या हो रहा था, दिस एजेंट में बी एग्जामिन्ड, फाइन, लेकिन द कोर्ट में, व्हाट, कोर्ट में, इट मीन्स डिस्क्रेशन है कोर्ट का, इफ इट थिंक्स फिट, यदि कोर्ट उचित समझती है तब क्या, ऑर्डर दैट, आदेश दे सकती है क्या, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मीन्स हु इज नॉट अपीयरिंग इन द कोर्ट, वो कोर्ट में आया नहीं है, वो उसे किसे भेजा था, उसे एजेंट को भेजा था, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, नो नो नो, एप्लीकेंट बी एग्जामिन्ड, एप्लीकेंट को ही एग्जामिन करेंगे हम, और कैसे करेंगे, बाय ए कमीशन कर सकते हैं। कमीशन का प्रोविजन कहाँ दिया गया होता है, ऑर्डर 26 में प्रोविजन दिया गया होता है। इन द मैनर इन विच द एग्जामिनेशन ऑफ एन एब्सेंट विटनेस में बी टेकन। तो दिस इज द डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ रूल 4। लास्ट पार्ट अब समझिए इस बात को क्या है कि व्हेन एजेंट इज अपीयरिंग, जब एजेंट अपीयर हो रहा है तब क्या होगा, कोर्ट, आई एम द एजेंट, आई एम योर एजेंट, आई हैव अपीयर्ड इन द कोर्ट, बट कोर्ट इज ऑफ द व्यू कि नो, वी मस्ट एग्जामिन द एप्लीकेंट इट्स हिमसेल्फ, एप्लीकेंट को ही एग्जामिन करेंगे। यू हैव प्रेजेंटेड द एप्लीकेशन, नो प्रॉब्लम इन दैट, एप्लीकेंट वी हैव एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, बट नो वी वांट टू गो इनटू द रूट ऑफ द मैटर, हमें सच्चाई का पता करना है, एंड फॉर दैट पर्पज वी वांट टू एग्जामिन द एप्लीकेंट इटसेल्फ। व्हाट इज द वे आउट, if a person is not in a position to come to the court, एक व्यक्ति अगर कोर्ट में नहीं आ सकता है और कोर्ट की समझती कि उसका एग्जामिनेशन भी जरूरी है, देन देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द कमीशन, लाइक एब्सेंट विटनेस, विटनेस नहीं आ पा रहा है तो उसका एग्जामिन करना अगर जरूरी है तो कोर्ट देन सेंड ए पर्सन, अथॉरिटी, पर्सन अपॉइंटेड बाय द लोकल कमीशन बोलते हैं उसको, टू एग्जामिन द विटनेस, तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द कमीशन। तो हम उस प्रोविजन को यूज करके एप्लीकेंट का एग्जामिनेशन कराया जा सकता है। तो इन दैट केस हियर यू कैन सी ए क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स कि वेदर व्हेन द एप्लीकेशन टू सू एज इंडिजेंट पर्सन इज प्रेजेंटेड बाय द एजेंट, एजेंट ने प्रेजेंट की है एप्लीकेशन, लेकिन एग्जामिनेशन किसका हो रहा है, एप्लीकेंट का हो रहा है। फिर भी एप्लीकेशन कौन लाया, एप्लीकेशन लिखा है एजेंट, कोर्ट किसका एग्जामिनेशन करना चाहती है, एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट कहाँ है, अपने घर पर है, नहीं आ पाया तो ठीक है, हम कमीशन के थ्रू उसका एग्जामिनेशन कराएंगे। तो ये पावर है कोर्ट को रूल 4 में। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल 4। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रूल 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल 5। प्लीज कम टू द रूल 5 नाउ।